Hello guys. Now today we will see relation between its length and a radius of atom in unit cell. Dear student, one thing you have to remember, don't take tension, try best from your side and you will get success. Don't be hopeless. Okay? Daily you do practice and continuously do study according to your timetable. Okay, so during these days, whatever is going on due to the COVID, you should not suffer your study. Okay, children. So today I want to tell relation between its length and radius of atom in a unit cell. As you know, there are three types of the cells mainly in your syllabus, and remaining things are in a BSc and MSc in a detail, that solid state. But up to the 12th class, in a 12th class especially, only three types of unit cells given for the relation of the its length and radius. That is the simple primitive, okay, simple cubic unit cell, that is also known as the primitive cell. Second number is the BCC, body center cubic cell. Third is the FCC. So first one today we will see that simple cubic unit cell, that is also known as a primitive cell. As you know, regarding primitive cell, in that atoms are present only at the corner, not inside the body or on the faces, only on corner they are present, and their Z value equal to 1 atom, that we have calculated in a previous video. Okay, so number of atoms in a simple cubic cell or primitive cell, that is the Z value is 1. Okay, now let's see. As you know, in diagram, these particles, atoms are present only at the corner. In this situation, these atoms, they touch to each other. Okay, and every distance, suppose you will take this distance, this distance, this distance, they represent to the A. And we will see relation between the two neighboring atoms. Okay, so that is represented by A. Okay, and radius, the distance from center of the nucleus of atom up to the other nucleus distance, that is known as the radius. It is represented by the small r. Okay, now we will see that A equal to 2r. If you want to find value of r, then what will be there? R equal to A upon 2. Both formula are important for numericals, and especially A is important for your packing efficiency. We will use this A value, A equal to 2r is there, that we have to use there. Okay, now see that packing efficiency in simple cubic unit cell. In a short form we write there simple cubic cell, or primitive cell we can also say. Now formula is there, packing efficiency equal to, in a percentage we have to find out, formula of volume of atoms. How many atoms are there? Only one. Z value is 1 in unit cell upon total volume of unit cell. And children, you know, atoms are found in a spherical structure.
So according to the maths, the volume of a sphere or atom equal to 4 by 3 pi r cube. Volume of atom in a spherical structure, that is 4 by 3 pi r cube, and total volume of unit cell equal to a cube. And what is the a cube? 2r square. Okay, so all value we have to put here. 4 by 3 pi r cube, and its cube we have to find out. 8r cube, r cube cancel. Okay, then it is also there. So what is left? Pi into 100 upon 6. Pi value 3.14 into 100 upon 6. Decimal cancel. What will be there? 314 divided by 6. So what will be there? Its response will be 52.4. 52.4, its value will be there. Okay, it represents to the occupied space. The meaning of occupied, it means that atom occupy this much percentage, 52.4 space in a unit cell. If we want to find out unoccupied, then we can minus from 100. That value represent to the unoccupied space in a unit cell. Okay, so that we have completed. So what is the occupied space percentage? 52.4 in a simple cubic or primitive cell. That is a very simple. Now next we have to see BCC, body center cubic. Okay, clear? ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए दो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं. एक हमारा ट्रायंगल है BAC, जिसमें AC जो है डायगोनल को इंडिकेट कर रहा है. तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो गया? AB स्क्वायर, किसके बराबर है? वो A के बराबर है. दूसरा हमारा हो गया BC स्क्वायर, वो भी A के बराबर है. अब हमारी AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2A स्क्वायर. दूसरा जो हमारा बन रहा है ट्रायंगल, वो ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है. ध्यान से देखिएगा आप लोग जो है. अब इसमें इस चीज में अगर हम देखते हैं तो ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है? ट्रायंगल हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है DACD ट्रायंगल जो है बन रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे ट्रायंगल हमारा क्या है? AD है. और AD में यदि आप देखते हैं AD स्क्वायर हमारा डायगोनल है, उसके अकॉर्डिंग क्या बन गया आपका? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, क्लियर? अभी आप AC स्क्वायर इक्वल टू कितना फाइंड कर चुके हैं? 2A स्क्वायर. BC जो है किसके बराबर है? यहाँ A के बराबर है. ये भी जो है A के बराबर हो गया. AD देखिए आप, ये इतना पार्ट आप देखिए, ये इतना पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R, 2R प्लस R, 4R को बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, 4R स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 3A स्क्वायर हो गया. इसको यदि आगे हम सॉल्व करते हैं, 4R की वैल्यू यदि हमने ली तो हमारा क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर हो जाएगा. और इसको यदि सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3A आ गया. इसकी वैल्यू फाइंड करिए. 4R इक्वल टू √3A हो गया. ओके, R की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. R की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3A अपॉन
4 आ जाएगा। ए की वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो ए की वैल्यू यदि फाइंड करते हैं तो वैल्यू इसकी हो जाएगी 4r/√3। ये वैल्यू आपकी इम्पॉर्टेंट है जो आपको पैकिंग एफिशिएंसी में यूज करनी है। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा जो होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 atoms in unit cell upon total volume of unit cell. Okay, वॉल्यूम ऑफ 2 यूनिट सेल। मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ एटम हमारा स्फीयर के फॉर्म में है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4/3 πr³ इक्वल हो गया आपका 8/3 πr³। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यदि आप लेते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a³ को, जो ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं, 8/3 πr³ a³ यदि हम करते हैं, a³ के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर 4r/√3 का स्क्वायर करेंगे। 4r का क्यूब यदि हम लेते हैं, क्यूब 4r/√3 का हमें क्यूब लेना है, तो हो जाएगा इसका 64r³ और √3 का सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे ये। ओके, आप सॉल्व कर लीजिए। 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये 8 कैंसिल हो गया, पाई रहेगा, r³ मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्या रह गया, पाई × √3/8। पाई की वैल्यू हमें मालूम है 3.14, √3 की वैल्यू होती है 1.31 होती है, हम 73 ले रहे हैं, केवल 1.731 होती है, डिवाइडेड बाई 8। अगर परसेंटेज में बच्चों फाइंड करना है तो आप परसेंटेज के लिए 100 जो है लगा दीजिए, या परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। इसका परसेंटेज जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा आपका 68%। 68% ये ऑक्यूपाइड है, जो एटम ने इतनी जगह यूनिट सेल में ऑक्यूपाई की हुई है। अगर आप अनऑक्यूपाइड फाइंड करना चाहते हैं, 100 से आप माइनस कर दीजिएगा, अनऑक्यूपाइड स्पेस उसका जो है आ जाएगा कि यूनिट सेल में से कितना अनऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड तो हमारे पास है बच्चों। ये हमारा बीसीसी का हुआ। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है हमारा एफसीसी। अब देखिए एफसीसी में Z की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, 1 हमारे कॉर्नर पर और 3 हमारे जो होते हैं वो फेस के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, 6 फेसेस होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 फेसेस होते हैं एफसीसी में। तो उसके बेस पे हम जो है देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे होते हैं 4 होते हैं। वो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था जहाँ नंबर ऑफ एटम्स जो है काउंट किए थे। अब बच्चों आप देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है आपका वो बन रहा है ABC ट्रायंगल आपका बन रहा है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यदि हम देखते हैं ट्रायंगल ABC में हमारी AB जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायगोनल को इंडिकेट कर रहा है, जो किसके इक्वल है 2r + 3r, 1 यहाँ पर है 4r हो गया। BC हमारी साइड एड्स लेंथ है जो A से रिप्रेजेंट की जा रही है, ACB A के इक्वल है। यहाँ यदि पाइथागोरस थ्योरम में आप देखते हैं तो AB² = AC² + BC² है।
ए बी स्क्वायर की जगह यदि आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 4r के इक्वल है। ए और सी ये ए स्क्वायर के बराबर हो गई, बी सी ये भी ए है, ए स्क्वायर हो गई। फॉर्मूला आपका जो बन गया 2a स्क्वायर बन गया। अब हमें यदि r की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 4r स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2a स्क्वायर जो है हो गया। आगे इसको यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना आ गया आपका, रूट ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, सॉल्व करने पे रूट 2a जो है आ गया। r की वैल्यू चलिए फाइंड करते हैं। रूट 2a अपॉन 4 हो गई, ये a है। अगर a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4r अपॉन रूट 2। ये हमें पैकिंग फ्रैक्शन में, पैकिंग एफिशिएंसी में इस a की वैल्यू की नीड हमें पड़ेगी। ओके, अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाइए। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू परसेंटेज में डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर और एटम, 4 एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 कर लेते हैं, कितना हो गया, 16/3 पाई आर क्यूब हो गया। साथ में ये किसके बराबर हो जाएगा, a क्यूब, जो ये वैल्यू हमें दी गई है। चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। 16/3 पाई आर क्यूब, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं a क्यूब को तो कितना हो जाएगा, 4r अपॉन रूट 2। इसका अगर हमने क्यूब कर लिया तो 64r क्यूब 2 रूट 2 हमारा हो जाएगा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं इंटू 64r क्यूब 2 रूट 2 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया, इसको भी कर लिया, r क्यूब यहाँ क्रॉस हो गया। क्या है हमारे पास में, पाई है इंटू रूट 2 अपॉन 6, यहाँ 100 कर लीजिए। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 होती है, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। उसके बाद में इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 74%। 74% जो रिप्रेजेंट करता है वो ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ एटम है इन यूनिट सेल। अगर अनऑक्यूपाइड फाइंड करना है तो आप उसे 100 से माइनस कर दीजिए, वो अनऑक्यूपाइड स्पेस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारी 3 चीज़ें कंप्लीट हुई। सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, तीनों हमारी जो है कंप्लीट हुई। उसमें हम लोगों ने रिलेशन देख लिया जो आपको न्यूमेरिकल में एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए, रेडियस फाइंड करने के लिए वो वैल्यू जो है काम आएगी। साथ में पैकिंग एफिशिएंसी भी आपने देख ली। ओके।